So we have been doing about your dot product. So we have done with some of the problems and some small concept. And one of the small topic is left out in this one. That is about your, take the next heading, geometrical interpretation. Geometrical interpretation geometrical interpretation of dot product. Geometrical interpretation of your dot product. Okay. Sure. So what we have been talking about the dot product beta. If two vectors are being taken like this is a vector, say for example a bar, and this one is your another vector, say for example b bar. Angle between them is say for example theta. Okay, so the dot product can be regarded as what? Product of two quantities. One is magnitude of the one of the vector and the scalar component of the second vector. So I'll write here right now a dot product can be regarded as the product of two quantities, Number one, the magnitude of one of the vector, vectors. Number two, the scalar component. The scalar component of the second vector. Along the direction of first vector. ठीक है ना? So dot product is regarded as what beta? Two quantities. एक तो उसका magnitude और along with that one it's a scalar component part of relation. मान के चलो मेरे पास a bar dot b bar है. a bar dot b bar. इसको कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग? It is nothing but a b into your cos theta ना. ठीक है ना? So that can be taken as of a into, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं b into cos theta. यानी a bar जो है basically that is nothing but what for me magnitude. A is nothing but what, so a bar dot b bar is equals to, I can write here right now, see, a bar dot b bar is equals to magnitude of a bar into projection of b bar along a bar. इसको समझने की कोशिश करो बेटा अच्छी तरह से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं. बी cos थीटा क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोजेक्शन ऑफ योर बी बार अलोंग योर ए बार पार्ट ऑफ रिलेशन. या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, a bar dot b bar is equals to, मैं समझा देता हूं, so this is b into your a cos theta भी लिख सकता हूं, यानी this is equals to a bar dot b bar is equals to magnitude of your b bar into projection of a bar, your a bar along your b bar. समझाता हूं मैं आपको, टेंशन मत लीजिए. So this one is a bar dot b bar is equals to what? Magnitude of the one of the vector and the projection of your other one on the given condition. ये हो गया इसका application part. मान के चलो इसको देखो, मैं बेसिकली देख रहा हूँ. अब ये देखो, ये जो वेक्टर कंपोनेंट था ना मेरे पास, मान के चलो ये जो वेक्टर था यहाँ पर, से दिस वन वाज योर वेक्टर a बार और यहाँ पर ये था मेरे पास वेक्टर b बार.
दोनों के बीच में एंगल कितनी थी, थीटा। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं बेटा बी को, इफ आई एम रिजॉल्विंग द बी यानी प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन ऑन योर ए, बी का प्रोजेक्शन ऑन योर ए कैसा होगा बता सकते हैं कोई? बी को रिजॉल्व करो बेटा, कोई कर सकता है क्या? देखो जहां पर थीटा रहता वहां पर कॉस बोला ना मैंने, सो बी यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका यहाँ पर बी कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर इसका बी साइन थीटा। याद है ये? याद है? Yes. यानी ये के ऊपर क्या कंपोनेंट आ रहा, बी कॉस थीटा, यानी ए जो था एक्स एक्सिस पे था उसके ऊपर बी का कौन सा कंपोनेंट आ रहा, बी कॉस थीटा आ रहा। समझ में आई? तो ये जो था एक्स एक्सिस पे था ना बेटा, बी तो एंगल थीटा अहेड है, तो बी को अगर मैं रिजॉल्व करा तो एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट कितना है मेरे पास, बी कॉस थीटा। B cos theta. तो नहीं ये के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आया, बी का, बी कॉस थीटा आया। Yes. तो बी कॉस थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी कॉस थीटा इज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट, क्या बोल रहे थे, प्रोजेक्शन ऑफ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोजेक्शन ऑफ योर बी बार ऑन व्हाट, ए बार। A bar. ठीक है ना? So this one is your right now projection of क्या था बेटा, b बार along a बार। तो कभी भी b cos थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे अभी आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ b बार along your a बार। उसी तरह से इफ आई एम टेकिंग दिस कंपोनेंट लाइक दिस, मान के चलो यहाँ पर ये a बार है और यहाँ पर चलो ये यहाँ पर b बार है, इसको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस तरह से, तो ये एंगल हो गई 90 डिग्री और ये एंगल हो गई थीटा। अब ये को रिजॉल्व करो बी पे, ए को रिजॉल्व करो बी पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये cos थीटा आ जाएगा, जहां पर थीटा है वहां पर cos थीटा आ जाएगा ना बेटा। ए को अगर रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये cos थीटा हो जाएगा और इसके नीचे यहाँ पर जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास ये इंटू साइन थीटा। यानी बी के ऊपर ए का कौन सा कंपोनेंट जा रहा, ए के ऊपर ए का कंपोनेंट क्या है मेरे पास, ए cos थीटा है ना बेटा, ए cos थीटा किसके ऊपर बैठा हुआ है, बी के ऊपर। तो प्रोजेक्शन ऑफ योर ए बार ऑन बी बार इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी, ये cos थीटा। Cos theta. हम लोग कैसे बोलेंगे हम राइट नाउ, ए cos थीटा इज कॉल्ड एज ऑफ योर, ए cos थीटा इज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ, B bar प्रोजेक्शन along. ऑफ ए बार ऑन बी बार। ए का कंपोनेंट बी पे ले रहा हूं ना मैं, समझ में आया? Yes. ए का जो कंपोनेंट है ए cos थीटा वो आ गया मेरे पास कहां पर, बी के ऊपर, वो कौन सा कंपोनेंट आया, ए cos थीटा। तो हम लोग ए cos थीटा को क्या बोल रहे हैं राइट नाउ, ए cos थीटा इज बीन प्रोजेक्टेड ऑन बी बार। यानी इसको मैं इस तरह से लिख दूं, ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा बोले सर का समझ में आना। एरो मार्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ए का कंपोनेंट बी पे कितना है, ये cos थीटा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया? Yes, sir. चलो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं, क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। मान के चलो फर्स्ट वन लिख रहा हूं मैं बेसिकली, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग ए बार, along a bar is equals to, रिकॉर्ड हो रहा बेटा ये? हाँ सर। ओके, मेरे तरफ भी हो रहा ना? हाँ आप भी मैं भी कर रहा हूँ यहाँ से। ओके चलो, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग योर ए बार कितना हो जाएगा बेटा, देखो प्रोजेक्शन ऑफ योर बी बार अलोंग योर ए बार इज इक्वल्स टू हाउ मच, projection of your b bar along your a bar is equals to your how much, b cos theta। b cos theta को कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो cos theta कैसे लिख सकता हूं मैं बेसिकली, projection of your b bar along your a bar, projection of your b bar along your b bar is nothing but what for me, b into your cos theta, projection of your b bar along b bar is nothing but what for me, B cos theta. cos theta कैसे लिख सकता हूं, A bar into B.
प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलॉन्ग ए बार मतलब क्या, बी कॉस थीटा ना, कहाँ गया ये बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा को बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार बाई मॉड ये हो जाएगा। Yes. यहाँ दिखता हूँ देखो, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा ना बेटा, बी कॉस थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन बोल रहे हैं ना, तो बी कॉस थीटा कैसे लिख सकते हो आप, ए बार डॉट बी बार बाई ये लिख सकते हो, Yes. नहीं आया, ठीक है मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार। देखो ए बार डॉट बी बार क्या है बेटा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसमें प्रोजेक्शन ऑफ बी बार एंड ए बार मतलब क्या, बी कॉस थीटा ना, यस सर। तो बी कॉस थीटा बाहर निकालो तो बी कॉस थीटा कितना आ गया, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाई ये लिख सकता हूँ, यस तो बी कॉस थीटा के वैल्यू प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग ए बार मतलब क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, ये इसका प्रूफ है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या आंसर लिख दूं मैं बेसिकली, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार या ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाई मॉड ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना बेटा। Yes. अब देखो यहाँ पर ए बार डिवाइडेड बाई मॉड ए कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखो यहाँ पर अगर बैक चले जाए तो मैंने आप लोग को एक टॉपिक बताया था, कहाँ गया ये, कहाँ गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या ये क्या था देखो, यूनिट वेक्टर कैसे लिख रहे थे देखो, ए बार डिवाइडेड बाई मॉड ए क्या हो जाएगा, Unit vector. ए बार डिवाइडेड बाई मॉड ए क्या है बेटा, यहाँ यूनिट वेक्टर, Unit vector. यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, ए डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर भी मैं वो लिख सकता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर जो है that is equals to, this is equals to, ये कितना बन जाएगा, b bar as it is रहेगा and a bar dot b bar क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ योर a bar लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और एक देख लो फिर एक बार, अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ a bar along b bar बोल दिया मैंने, तो क्या होगा, इसका प्रूफ बताओ जल्दी से। देखो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग बी बार मतलब क्या, ए कॉस थीटा ना, तो इट इज बी इंटू ये हो गया ए इंटू कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा को बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ योर बी, देख सकते हो ऐसा, ये बी क्या है, मॉड ही है ना। Yes. तो ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग बी बार मतलब क्या आंसर आ जाएगा बेसिकली, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ योर बी, यानी ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड बी मतलब क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, हो गया। Yes. सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग बी बार मतलब क्या लिखोगे, ए बार डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, or else you can directly write a bar dot b bar by mod of your a, very important pattern न्यूमेरिकल्स में आते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ b bar along a bar मतलब a bar dot b bar divided by mod a, that is equals to b bar dot unit vector of your a, A. Yes. clear है। Yes, sir. यस सर। नो रिस्पॉन्स, डल रिस्पॉन्स है, फिर एक बार बोलूं क्या, Yes, sir. कौन सा पार्ट बोलूं बेटा, प्रोजेक्शन वाला। देखो यहाँ पर मैंने देखो ये जो है बेसिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या बोल रहे हैं,
अगर हम लोग ए बार डॉट बी बार लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला हम लोग ने कल लिखा था ना, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। तो हम लोग इसको कैसे लिख रहा हूँ, ए इंटू बी cos थीटा। तो ये को क्या बोल रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोल रहा हूँ, और बी cos थीटा को क्या नाम दे रहा हूँ मैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग व्हाट, ये। ठीक है, बी cos थीटा का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ योर बी बार अलोंग योर ए बार। क्यों, ये देखो यहाँ पर जो कंपोनेंट है ए बार और बी बार, बी का कंपोनेंट ऑन ये क्या होगा, बी को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ ना बेटा, जैसे आप वेक्टर्स में रिजॉल्व करते हो, ये वेक्टर ये है, तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री से यहाँ पर अगर अनदर है तो ये क्या लिखोगे, ए इंटू कॉस 30 यहाँ लिखोगे, ए इंटू साइन 30 यहाँ लिखोगे ना बेटा। एक्स एक्सिस पे ये का कंपोनेंट कितना है, ये cos 30 लिखोगे ना, Yes, sir. isn't it? तो यहाँ पर जो वेक्टर लिया था मैंने बी बार, तो बी बार का कंपोनेंट कितना है एक्स एक्सिस पे, बी cos थीटा, और बी cos थीटा किस पे आ रहा है, ये पे आ रहा। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन, यानी बी का प्रोजेक्शन किस पे, ये पे। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग ए बार इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, बी cos थीटा। क्लियर है? Yes, sir. देन यहाँ पर देखो ए बार और बी बार है, पहले ए बार और बी बार ऐसा है भाई, फिर से एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये हो गया मेरे पास ए बार, ये हो गया मेरे पास ए बार, और यहाँ पर था मेरे पास ऐसा बी बार, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा थी। अब मुझे ये को रिजॉल्व करना है बी पे, तो अगर हम लोग ऐसा कंपोनेंट ले ले परपेंडिकुलरली, क्या है, ग्रीन और रेड दोनों परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो ये का कंपोनेंट बी पे क्या आ जाएगा, ये cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इंटू साइन थीटा आ जाएगा। तो ये बी पे कितना कंपोनेंट हो रहा है, ये cos थीटा किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। तो इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं रब कर देता हूँ बेसिकली। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग ए बार मतलब क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग ए बार मतलब क्या है बेटा, बी cos थीटा ना। तो ये बी cos थीटा किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ए बार डॉट बी बार बाई मॉड ऑफ योर ए बार डॉट मॉड ए इज नथिंग बट व्हाट, यूनिट वेक्टर ऑफ योर इसका प्रूफ देखो यहाँ पर लिखा मैंने, ए बार डॉट बी बार इज ए इंटू बी cos थीटा, बी cos थीटा को बाहर निकाला तो ए बार डॉट बी बार बाई मॉड ऑफ योर ए बार डिवाइडेड बाई मॉड ए इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग बी बार मतलब क्या है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ A cos theta. क्या, प्रोजेक्शन ऑफ योर ए बार अलोंग बी बार मतलब क्या, ए cos थीटा ना। तो यहाँ Yes. पर लिखता हूँ basically इसको, ये हो गया यहाँ पर ये cos थीटा। तो ये cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए cos थीटा वैल्यू इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड बी, बी बार डिवाइडेड बाय मॉड बी इज नथिंग बट व्हाट, यूनिट वेक्टर। यहाँ पर देखो इसका प्रूफ, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी इनटू ए cos थीटा, ए cos थीटा मैंने बाहर निकाला, तो ए cos थीटा बाहर निकला तो कितना निकला, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ योर बी। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. एक क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, चलो देखते हैं कितना अपने को वर्कआउट हुआ है बेसिकली। फाइंड द प्रोजेक्शन, आराम से फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a bar is equals to 2i cap minus j cap plus k cap on b bar, b bar is equals to i cap minus 2j cap plus k cap। ये क्वेश्चन है, आराम से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन को कोशिश समझो। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, ए बार एंड बी बार ना, व्हाट इज आस्किंग, projection of A bar on B bar, projection of A bar on B bar मतलब क्या, projection of A bar on B A cos theta. A cos theta. A cos theta, that is nothing but of your A into your cos theta, theta is nothing but what for me, that is nothing but of your A into your cos theta, theta is the angle between, theta is angle between ए बार एंड बी बार। ठीक है ना, तो ऐसे किसका लिख सकता हूं मैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कैसे बेटा,
A bar dot B bar by mod of B. A bar dot यूनिट वेक्टर ऑफ B bar. बार। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं यहाँ पर और दूसरे पेन से लिखता हूँ, देखो ए बार डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी बार। तो कैसे लिखूं, कोई प्रॉब्लम है आपको? बी क्या मतलब, क्या यूनिट वेक्टर ऑफ बी का ही मतलब ना, Yes. समझ में आया? Yes, sir. ये कि बी कैप कैसे लिखते हो बेटा बताओ? ये यू ऐसा भी लिख सकते हो या बी कैप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी क्या है इसका मतलब, बी बार, ठीक है ना? Yes. चलो ए की वैल्यू क्या क्या है डाल दो यहाँ पर, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना? डॉट बी कैप इज नथिंग बट बी बार की वैल्यू क्या क्या बताओ, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालता मैंने बोला, अंडर रूट ऑफ आई की जगह 1 स्क्वायर माइनस की जगह प्लस ऑफ योर 2 होल स्क्वायर प्लस 1 ऑफ योर होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना? Yes, sir. isn't it? तो अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ रहा है देखो राइट नाउ, आई कैप इंटू आई कैप को मल्टीप्लाई करो, 2 आई कैप इंटू आई कैप कितना बन जाएगा, आई कैप इंटू आई कैप इज हाउ मच, 1 ना? Yes. तो 2 into 1 is nothing but 2 plus that is nothing but minus of minus j minus 2j, ये कितना बन जाएगा, Plus 2. plus 2 plus 1 and plus 1, k मतलब क्या 1, k क्या मतलब क्या 1, that is nothing but 1 divided by, ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1, यानी कितना बना ये 6. तो आंसर क्या बना, Root 6. 5 by root 6. रूट 6, ये हो गया इसका आंसर। टेढ़ा दिख रहा है सर। समझ में आया? Yes. फिर से एक बार देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार मतलब क्या, ए इनटू cos थीटा। ए cos थीटा तो नहीं दिया मुझे, एंगल नहीं दिया, तो cos थीटा कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ए बार डॉट बी कैप। बी कैप मतलब क्या राइट नाउ बताओ, देखो बी कैप मतलब क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कभी यू बी कैप को बी कैप से भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा कभी भी, बी बार डिवाइडेड बाय मॉड बी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? Yes. चलो तो मैंने बी बार को लिख लिया, मॉड ऑफ बी कैसे निकालते हैं मालूम है ना, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो, वी आर गेटिंग 5 बाय रूट 2, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. चलो और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलो एक क्वेश्चन लो, ए वेक्टर इज गिवन बाय, a vector is given by a bar is equals to 3 I cap plus 4 j cap plus 5 k cap, okay, full stop. Find magnitude of a bar, find magnitude of a bar comma unit vector along a bar and angles made by a bar with coordinate axis, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। वेक्टर इज बीन गिवन फॉर मी, तो हम लोग को इसका यूनिट वेक्टर निकालना और डायरेक्शंस निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है और क्या निकालना है अपने को, डायरेक्शंस निकालना है अलोंग योर कोऑर्डिनेट्स, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन निकालना है, अलोंग वाई एक्सिस इसकी डायरेक्शन निकालना है एंड अलोंग योर जेड एक्सिस उसकी डायरेक्शन अपने को निकालना है। ट्राई करोगे? गिवन वेक्टर क्या है देखो, ए बार है मेरे पास, गिवन a bar is equals to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. Find the magnitude of a bar. कोई बता सकता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a bar कितना होगा, मॉड ए मतलब कितना,
अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड। तो कितना बना देखो, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25। तो कितना बना पूरा देखो जल्दी, कितना बना? अरे है नहीं है? Sir, screen is not visible, sir. वाई नॉट विजिबल? Yes, sir. किसी को नहीं दिखाई दे रहा? वो stuck हुआ हुआ है. Yes sir, stuck है। तक होगा सर। अभी Same। नहीं सर। ईमेल लास्ट प्रॉब्लम नहीं देखा सर. अरे बाप रे, अभी Yes, sir. प्रीवियस प्रॉब्लम क्लियर है ना? प्रीवियस नहीं, एक टाइम फिर एक्सप्लेन कर दीजिए ना. ये देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार बोला है बेटा। ए वैल्यू दे रखा है, बी वैल्यू दे रखा है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार कैसे लिखते हैं बोला मैंने, ए cos थीटा होता है ना बेटा। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार मतलब क्या, ए cos थीटा ना। ए cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए बार इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी बार, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। यहाँ देखो, ए बार डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी बार। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं देखो, बी कैप इज इक्वल्स टू बी बार बाय मॉड ऑफ बी, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर ऑफ बी विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, बी बार बाय मॉड ऑफ बी लिखोगे ना, है कि नहीं? Yes sir। तो ए बार की वैल्यू दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी कैप की वैल्यू निकालना है, बी कैप मतलब क्या, बी बार डिवाइडेड बाय मॉड बी यूनिट वेक्टर, बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ योर बी यूनिट वेक्टर। सो बी की वैल्यू लिखा, उसकी मैग्नीट्यूड डाला, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस के मतलब यूनिट वेक्टर है 1, तो उसको सिंपलीफाई कर लिया तो कितना आ गया 5/√6, ठीक है। Yes sir। Yes, sir. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए वेक्टर इज गिवन बाय ए बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कामा यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार एंड एंगल्स मेड बाय ए बार विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। 3 क्वेश्चन है इसमें, पहले तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है अपने को, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है बेसिकली, सॉरी ये क्या पूछ रहा है नेक्स्ट वन अपने को, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग योर ए बार, एंड उसके बाद क्या पूछ रहा है, एंगल्स मेड बाय योर ए बार विद कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। अब गिवन क्या है मेरे पास, ए बार 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसका मैग्नीट्यूड किससे निकालोगे, मॉड, मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सब क्लियर है सभी को? Yes sir। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताया मैंने, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर। नो रिस्पॉन्स। अरे कल तो बताया था ना बेटा मैं, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है कोई भी वेक्टर का, ए बार इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है, इसका मैग्नीट्यूड मैथ्स में कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमारे पास ए क्या दे रखा है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना बना 50. ये हो गया मेरे पास 50, यानी 50 का मतलब क्या, कैसे लिख सकता हूं मैं 50, 5√2, सही ना बेटा? Yes sir। 50 is how much for me, 5√2, निकला सभी को?
sir. Yes. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे बेटा? यूनिट वेक्टर अलोंग योर ए बार मतलब क्या? ए कैप कैसे लिख सकता है? कोई बता सकता है जल्दी से? ए कैप इज इक्वल्स टू ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ए, यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना? Yes, sir. याद नहीं है? नहीं, अरे वीडियो रिकॉर्डेड है बेटा, आप लोग कभी भी जाके आप लोग रिवाइज कर सकते हो, उसके अंदर इतना सारा मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं मैंने कितनी बार बताया ऑलरेडी। यूनिट वेक्टर बोल के सेपरेट हेडिंग रख के मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था बेसिकली। यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप बी कैप कैसे लिखते हैं बेसिकली सब कुछ बताया था मैं। यहाँ देखो, यहाँ पर कहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन, यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर देखो। ए कैप इज ए बार बाय मॉड ए, बी कैप इज बी, यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? बी बार बाय मॉड बी। वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर मतलब v बार बाय मॉड v। एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर मतलब a बार बाय मॉड a। समझा था कि नहीं? कि वेक्टर कैन बी स्पेसिफाइड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इफ इट इज रिटन एज, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो को रखोगे तो एक वेक्टर होता। तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे आप? डायरेक्शन इज n कैप, दैट n कैप इज इक्वल्स टू a बार डिवाइडेड बाय मॉड a। यूनिट वेक्टर कभी भी निकालना है अपने को तो क्या करना है बेसिकली? a बार डिवाइडेड बाय मॉड a के लिए, b रहा है तो b बार डिवाइडेड बाय मॉड b, c रहा है तो c बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c। तो वैसा कर लो, आपको आंसर निकल जाएगा यूनिट वेक्टर के लिए। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर बताओ। ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो सेकंड क्या बोला? यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार पूछा है, यानी ए कैप इज इक्वल्स टू ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ए। ए बार की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 5 रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना है मेरे पास? 5 रूट 2। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह से डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस अगर जा रहे हो, अलोंग एक्स एक्सिस तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू ax डिवाइडेड बाय मॉड a। ठीक है? अलोंग वाई एक्सिस जा रहे हो, अलोंग वाई एक्सिस अगर निकालना है तो cos बीटा इज इक्वल्स टू ay डिवाइडेड बाय मॉड a। अलोंग z एक्सिस निकालना है, अलोंग योर z एक्सिस यानी cos गामा इज इक्वल्स टू az बाय योर मॉड a। ठीक है ना? सो अलोंग एक्स एक्सिस क्या है मेरे पास? cos अल्फा। तो अल्फा वैल्यू निकालना है मुझे, cos अल्फा इज इक्वल्स टू x क्या है बता सकता है कोई? व्हाट इज x? 3. 3i कैप। वेरी गुड, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर 3 डिवाइडेड बाय मॉड a कितना है? 5 रूट 5 root 2. मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना आया? अल्फा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 रूट 2। ठीक है? उसी तरह से बीटा निकालो, cos बीटा इज इक्वल्स टू ay क्या है बता सकता है कोई? व्हाट इज 4j. 4j डिवाइडेड बाय 5 रूट 2। मतलब बीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4 बाय 5 रूट 2। डायरेक्शन निकलने आया सभी को? cos गामा Yes, sir. इज इक्वल्स टू z एक्सिस में क्या है? 5 5. 5 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2। ठीक है ना? तो कितना बन गया मेरे पास? 1 बाय रूट 2। ठीक है ना? तो गामा इज इक्वल्स टू मच भी गामा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2। ठीक है ना? cos इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 मतलब कितना? पाई बाय 4। Yes, sir. पाई बाय 4 45। Yes, sir. ठीक है ना? चलो और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे प्रैक्टिस में, तो और थोड़े क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाएगा कि ऐसा हम लोग को क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो जल्दी से और एक क्वेश्चन कर लो। फाइंड द वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of the vector, direction of the vector 2i cap minus j cap
plus 4 k cap, which has magnitude 4 units, which has magnitude कितना 4 units. ठीक है, चलो जल्दी से ट्राई करो कोई. Find a vector in the direction of vector 2i cap minus j cap plus k cap. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले. मॉड ऑफ ए विल बी इक्वल टू कितना बता सकता है कोई? मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 का होल स्क्वायर. -1 होल स्क्वायर मतलब 1 ही होगा ना, तो कितना हो जाता है कोई बता सकता है? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर, 21. ये हो गया रूट 21. मैग्नीट्यूड निकालना है सभी को, आया? चलो इसका यूनिट वेक्टर बता सकता है कोई कैसे निकालना है? यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप इज इक्वल्स टू ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ए. ठीक है ना, ए बार कितना है मेरे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट 21. ठीक है, अपने को चाहिए क्या? A vector in the direction of a vector 2i cap minus 4j cap plus 4 cap which has magnitude of what 4 units. So required vector is कितना 4 times of a bar बोल रहा हूं. समझ में आया? जी सर. 4 times of, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला मैग्नीट्यूड कितना है उसका 4 टाइम्स ऑफ ए बार होना है, यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू ए बार की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ए बार इज इक्वल टू कितना बताओ? फाइंड द वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ योर ए बार. वेक्टर कितना है मेरे पास यहाँ पर? यूनिट वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप बाई रूट 2, यानी रिक्वायर्ड वेक्टर इज 4 टाइम्स ऑफ योर ए बार, यानी कितना बन जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 2i कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ योर 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ योर 21 रिक्वायर्ड वेक्टर. तो कितना बन जाएगा 4 2 8, दिस वन इज 8i कैप माइनस 4j कैप plus this one will become 16k cap divided by root 21. तो ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर. ठीक है, निकला सभी को? यस सर. समझ में आया? फिर एक बार बतलाऊं. आ गया सर. पक्का ना? पक्का. एक क्वेश्चन देखो बेटा, आप लोग करो, ट्राई करो आप लोग अपनी तरफ से. इफ ए बार एंड बी बार आर 2 वेक्टर्स, इफ ए बार एंड बी बार आर 2 vectors such that mod A is equals to 4 comma mod B is equals to 1/2 and A bar dot B bar is equals to -1 comma find the angle between A bar and B bar. ट्राई कर सकता है कोई? अरे डाटा अच्छी तरह से समझो क्या क्या दे रखा है. A bar and B bar are 2 vectors बेटा, isn't it? और मैग्नीट्यूड ऑफ A दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ B दे रखा है, A bar dot B bar भी दे रखा है. अपने पास A bar dot B bar का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ? A bar dot B bar is equals to कितना mod A mod B into cos थीटा, है कि नहीं? यस सर. सो A bar dot B bar कितना दिया प्रॉब्लम में? -1. mod A कितना दिया 4 इंटू मॉड बी कितना दिया 1/2 इंटू कॉस थीटा. ये हो गया 2 1 जा, ये हो गया 2 2 जा, सो ये हो गया -1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो थीटा कितना होना चाहिए
cos थीटा की किस वैल्यू के लिए -1/2 है? 120। याद नहीं है? cos 120 कितना होता है? -1/2। ठीक है, क्या हुआ बाबा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हेलो, हमें ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर समझ नहीं आया। हाँ, Yes, sir. सोच रहे थे। ठीक है, चलो इसका आंसर दो एक बार जल्दी से। इफ a bar is equals to I cap plus j cap plus 2k cap and b bar is equals to 3 I cap plus 2 j cap minus k cap. Find the value of a bar plus 3 times of b bar dot 2 times of a bar minus b bar. क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से पहले। ए बार दे रखा है, बी बार दे रखा है, हम लोग को चाहिए क्या? ए बार प्लस बी बार डॉट 2a बार माइनस बी बार इज इक्वल टू हाउ मच? पहले ए बार प्लस बी बार निकाल लेते हैं। ए बार प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी बार कितना? ए की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी मेरे पास, कितना दे रखा है बेटा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ योर के कैप, isn't it? ये हो गया प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी बार की वैल्यू कितनी दे रखा है? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ योर के कैप। ठीक है ना? तो ये बना कितना बताओ जल्दी से? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 3 3 is 9 आई कैप प्लस 3 2 is 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। आई कैप और आई कैप ऐड कर सकता हूँ ना बेटा मैं? 9 आई कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा? 10 I cap. 10 आई कैप प्लस 6 प्लस 1 7 जे कैप 2 माइनस 3 माइनस के कैप। तो ये हो गई ए बार प्लस 3 बी बार की वैल्यू। समझ में आया कैसे निकालना? Yes, sir. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 ए बार माइनस बी बार की वैल्यू निकालेंगे। निकाल सकते ना? तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए बार की वैल्यू कितनी है? ए बार की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस बी बार की वैल्यू कितनी है? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ योर के कैप। ठीक है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करो। ये हो गया 2 आई कैप प्लस ये हो गया 2 जे कैप प्लस ये हो गया 2 इंटू 2 4 के कैप। ये हो गया माइनस ऑफ 3 आई कैप प्लस योर 2 जे कैप माइनस ऑफ योर के कैप। तो 2i माइनस 3j कितना होगा? 2 माइनस 3 कितना? माइनस 1 आई कैप। अरे बाबा, Yes, sir. 2 माइनस 2 कितना? 0 जे कैप प्लस 4 माइनस 1 ये कितना? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना बनाए? 5। यानी आंसर क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप प्लस 5 के कैप। जे कैप नहीं आता इसमें, सो इट इज 2a बार माइनस b बार की वैल्यू इतनी आ गई। अब पूछना क्या प्रॉब्लम में? देखो a बार प्लस 3b बार डॉट 2a बार माइनस b बार इज हाउ मच? सो आई एम राइटिंग हियर राइट नाउ a बार प्लस 3b बार डॉट 2a बार प्लस b बार इज इक्वल्स टू हाउ मच? देखो कितना आ रहा? डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब कितना? आई डॉट इंटू आई डॉट कितना होगा? 1। तो ये कितना होगा? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली। देखो ये हो जाएगा मेरे पास, ये कितना वैल्यू आया मेरे पास? 10 आई कैप प्लस ये हो गया 7 जे कैप माइनस ऑफ योर के कैप डॉट 2a बार माइनस b बार कितना आया? माइनस आई कैप प्लस ऑफ योर 5 के कैप।
तो आई कैप और आई कैप को डॉट करो, कितना होगा? आई डॉट इंटू आई डॉट इज हाउ मच? 1। तो कितना आ जाएगा? -10। 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए जे नहीं है तो उसको छोड़ दो। उसके बाद के मल्टीप्लाई कर सकते हो, के मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बार फिर से के प्लस 5 कितना हो जाएगा? -5। पता है ना? बराबर लिखा है? सर एक बार फिर से करिए। अरे बेटा आई एन आई को मल्टीप्लाई करो बेटा। 10 इंटू -i कितना होगा? -10 ना। यस सर। 7 जे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी को? 0 है यहाँ पर। 7 into 0 is how much? 0 0। के -1 into 5 -5 -5 तो वही लिखा है ना। यस -10 -5 कितना होगा? -15। ठीक है, क्या समझ में आया? आ गया सर। आप लोग फिर वीडियो क्लासेस को नहीं देख रहे बेटा, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे। बस मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ वहां को भी, नहीं तो अब तक हो जाना चाहिए था मेरा टॉपिक। चलो नेक्स्ट वन देख लो, एक क्वेश्चन। इफ vectors a bar is equals to 3 I cap plus j cap minus 2 k cap and b bar is equals to I cap plus lambda j cap minus 3 k cap are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. Find the value of lambda, जो कांस्टेंट दे रखा है ना, उसकी वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से एक बार अच्छी तरह से। वेक्टर ए बार है, वेक्टर बी बार है, दोनों परपेंडिकुलर है बेटा। परपेंडिकुलर मतलब क्या? इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, मतलब एंगल कितना? 90 डिग्रीज। तो ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला मेरे पास मालूम है। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी इंटू cos 90। cos 90 कितना? 1 हाँ, cos 90 0 बेटा, cos 90 is 0। ठीक है, देन ए की वैल्यू डालो। अभी ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 I कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट बी बार। बी की वैल्यू क्या है? I कैप प्लस लैम्बडा जे कैप माइनस 3 के कैप इज इक्वल्स टू 0। I इंटू आई मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? I डॉट आई कितना? 1, यानी कितना हो गया? 3 प्लस j डॉट j इज हाउ मच? 1, कितना है? लैम्बडा, सो इट इज प्लस लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 2 3 6, दैट इज इक्वल्स टू 0। आया? यस सर। तो लैम्बडा कितना बना? -9। तो ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आई? यस सर। ऐसा रहता वेक्टर्स, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा। इसको अच्छा तरह समझोगे तो ही आपके रनिंग टॉपिक बाकी के समझ में आते। ऑलमोस्ट ऑल एंडिंग में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वेक्टर्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी एक दो दिन में मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन आप लोग थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो भी मैं प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, फिर से एक बार आप वीडियो यूट्यूब पे जाके एक बार से देख लिया, कर लिए एंड ट्राई टू रिवाइज इट। मैंने पूरे के पूरा वेक्टर जो भी आप लोग को पढ़ाया है मैंने, वो पूरा यूट्यूब में है। जब भी टाइम मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा तो वहां पर जाके उसको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में देख लो। दिस इज माई 5th लेक्चर ऑन द वेक्टर्स, आई होप सो। ये भी अभी थोड़ी देर में आपको अपलोड कर लेता हूँ। तो बाकी के पूरे जितना भी है आप लोग एक बार पढ़ने की कोशिश करो। रेसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, हाउ डू यू डू द प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके सर। यस सर। टाइम है अपने पास, और एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं बेटा, उसके बाद विल ट्राई टू कीप द फुल स्टॉप फॉर द सेशन। ठीक है ना? सो जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। बेसिकली आप लोग जल्दी जल्दी एक व्हाइट पेपर लेके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो मेरे साथ।
Okay, देखो if a bar is equals to 5i minus j cap minus 3k cap and b bar is equals to I cap plus your 3j cap minus your 5k cap. Find angle between a bar and b bar. Find angle between your a bar and b bar. करोगे? a bar dot b bar का फॉर्मूला क्या है? a bar dot b bar is equals to mod a mod b into cos theta. एंगल निकालना है मतलब क्या? cos theta निकालना है ना. cos theta is equals to क्या करोगे? a bar dot b bar divided by mod a mod b डालना है, उसको आंसर आ जाएगा. पहले a bar dot b bar निकालो जल्दी से. देखो a bar dot of your b bar is equals to a bar की वैल्यू कितनी है? This one is 5 I cap minus of your j cap minus of your 3k cap dot this one is your I cap plus of your 3 j cap minus of your 5k cap. इसको मल्टीप्लाई करो. I into I is nothing but how much for me? 1. कितना? 5. 5 1 जा. अरे बाबा जल्दी जल्दी. minus 1 into 3 कितना? minus 3. 3 5 जा 15 minus minus plus तो plus 15. तो कितना हो गया? 5 minus 3 2 2 plus 15 17. ये हो गया 17. a bar dot b bar is how much for me? 17. मैग्नीट्यूड ऑफ ये बता सकता है कोई? मैग्नीट्यूड ऑफ ये is equals to under root of your 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर. ये भी माइनस आता है यहाँ, ठीक है ना. माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो ये बताओ कितना आ रहा है जल्दी से? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9. तो बना कितना? root 35. मॉड बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया? 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो ये बना कितना? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 3 स्क्वायर इज 9 5 स्क्वायर इज 25. तो ये भी बना कितना मेरे पास? रूट 35. तो निकालना क्या था? cos थीटा. तो cos थीटा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ. cos थीटा इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय mod a इंटू mod b. a बार डॉट b बार कितना है बेटा? 17. पता ही आया था ना. a बार डॉट b बार देखो कितना है? 17 आया. डिवाइडेड बाय mod a की वैल्यू कितनी आई? mod a की वैल्यू इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी? और रूट 35. इंटू दिस वन इज आल्सो 35. तो ये कितना बनेगा? 17 डिवाइडेड बाय रूट 35. रूट 35 कितना होगा? 35. 35. तो थीटा वैल्यू कितनी बनी? थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 35 इज योर आंसर. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. Yes. तो आप लोग जरा वेक्टर स्टार्टिंग से एक बार जल्दी जल्दी फास्ट मोड पे डाल के रिवाइज करने की कोशिश करिए. 2x स्पीड पे डाल के यूट्यूब में आप लोग पूरे वेक्टर्स का चैप्टर जल्दी जल्दी से रिवाइज करने की पूरी कोशिश करिए. ठीक है बेटा? क्या बोल रहा हूँ? Okay, sir. आज आप लोग पूरा स्टार्टिंग से वेक्टर से मैंने जहां से बोला था वहां से आप लोग को स्टार्ट करके पूरा वेक्टर्स खत्म करना है. बेसिकली कल के क्लास तक जितना भी मैंने पढ़ाया था उसका पूरा का पूरा एक 2x मोड में डाल के यूट्यूब में जल्दी 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 सुनते चले जाओ. क्या बोलना चाह रहे थे, कैसा रिजॉल्व कर रहे थे, एंगल्स कैसा ले रहे थे बेसिकली. ठीक है ना? कर लोगे? Yes, sir. ठीक है चलो. आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर. विल ट्राई टू मीट अगेन टुमारो. बाय बेटा.